کربلا کے میدان میں ابن جہاد نے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا تو اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ اب جاؤ عورتوں کے خیمے پر حملہ بولو۔ ابن جہاد کے حکم پر ایک بڑا لشکر اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے عورتوں کے خیموں کی طرف آئے اور خیموں کو آگ لگانا شروع کر دی۔ اندر بیٹھی عورتوں کو بے پردہ کر کے خیموں سے باہر دھکا دے دیا گیا۔ فوجیں آگے بڑھتی جا رہی تھی اور ایک ایک کر کے خیموں کو آگ لگا کر اہل بیت کی عورتوں کو رسوا کر رہی تھی۔ اس وقت اچانک ایک آواز گونجی کہ اے ظالم اپنی جگہ رک جا، خبردار جو تم ایک قدم بھی آگے بڑھے۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے پیاری نواسی اور حضرت فاطمہ کی بیٹی حضرت زینب کی تھی۔ حضرت زینب وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے کربلا کی تاریخ میں جان ڈال دی اور ان کے دلوں کو چیر دینے والے خطبوں نے دشمنوں کو بھی رونے پر مجبور کر دیا۔ کربلا کی اس بہادر شیرنی نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو قتل ہوتے دیکھا، اپنے بھائی حسین کو دشمنوں کے سامنے بے بس ہو کر خون میں تڑپتا دیکھا اور اپنے چچاؤں کی گردن کٹتی ہوئی دیکھی، لیکن پھر بھی اپنے نانا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دین کی کشتی کو ان ظالموں کے سامنے ڈوبنے نہ دیا۔ حضرت زینب کی پیدائش 5 ہجری میں ہوئی اور خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کا نام زینب رکھا کہ جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک باپ کا سب سے قیمتی تحفہ۔ حضرت زینب حقیقت میں اپنے والد حضرت علی کا ایک قیمتی تحفہ تھی اور ہم سبھی تک دین پہنچانے میں انہوں نے جو رول ادا کیا ہے اسے تاریخ کبھی نہیں بھولے گی۔ حضرت حسن و حسین کی طرح حضرت زینب بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی نواسیوں میں سے ایک تھی کہ جنہیں خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر بٹھا کر بازاروں میں گھمایا ہے، ان کے لاڈ نخرے اٹھائے ہیں اور بچپن کے 5 سال حضرت زینب نے اپنے نانا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چھاؤں تلے گزارے ہیں۔ حسن اور حسین کی طرح حضرت زینب بھی صحابیہ ہے اور ان سے بہت سی حدیث مروی ہے۔ حضرت زینب نے ساری زندگی صرف غم اور پریشانی ہی دیکھی، ان کی زندگی میں اتنی زیادہ تکلیفیں آئی کہ ان کا نام ہی ام المصائب رکھ دیا گیا۔ عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے پریشانیوں کی ماں۔ سب سے پہلے اپنے نانا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کا ایسا غم کی جسے بڑے بڑے صحابہ اکرام بھی برداشت نہ کر سکے کہ جب حضرت زینب کے نانا کی وفات کی خبر ہوئی تو دل پر ایسی چوٹ لگی کہ اس کے بعد وہ اکثر خاموش ہی رہتی۔ ابھی اس واقعے کو 6 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ آپ کی امی حضرت فاطمہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی۔ امی کی وفات کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری حضرت زینب پر ہی آ گئی۔ کھانا بنانا، کپڑے دھونا، صفائی کرنا، بھائی یا والد کے بیمار ہونے پر ساری رات جاگ کر ان کی خدمت کرنا۔ الغرض حضرت زینب نے ان سبھی کاموں کو بڑی خوبی سے انجام دیا۔ امی کی وفات کا غم ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ اچانک ایک اور مصیبت آ پڑی۔ ایک دن صبح حضرت زینب کے والد حضرت علی مسجد میں نماز پڑھانے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اچانک باہر کچھ شور ہونے لگا۔ حضرت زینب پہلے تو سمجھ نہ پائی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن کچھ دیر بعد جب لوگوں نے آ کر گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت زینب گھبرا کر دروازے کے پاس گئی اور دروازہ کھولا تو ہوش اڑ گئے۔ سامنے والد حضرت علی جو ابھی کچھ دیر پہلے فجر کی نماز پڑھانے گئے تھے، ان کا زخمی جسم کچھ لوگ اپنے کندھوں کے سہارے گھر کے دروازے پر لیے کھڑے تھے۔ ملزم نے ایک تلوار میں زہر لگا کر حضرت علی پر نماز کے دوران اتنے وار کیے تھے کہ انہیں گننا بھی مشکل تھا۔ والد کی ایسی حالت دیکھ کر حضرت زینب کا دل تڑپ اٹھا۔ امی کی وفات کا غم ابھی ٹھنڈا بھی نہیں ہوا تھا اور اب والد بھی اس معصوم لڑکی کو چھوڑ کر جا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اوپر ہونے والے حملے کے بعد صرف 2 دنوں تک زندہ رہے۔ ان 2 دنوں میں حضرت زینب کبھی تو مصلے پر بیٹھ کر اللہ سے فریاد کرتی اور اپنے والد حضرت علی کی شفا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گر گرا کر دعائیں مانگتی، اور کبھی جلدی سے دوڑ کر اپنے والد کے پاس آئی اور انہیں اپنے ہاتھوں سے روٹی
और खाना खिलाने की कोशिश करती। बाप का दर्द एक बेटी ही महसूस कर सकती है। वे क्या मंजर होता होगा कि जब हजरत अली जख्मों से चूर होकर बिस्तर पर तड़पते होंगे और घर में मौजूद उनकी ये प्यारी सी बच्ची बीबी ज़ैनब दौड़ दौड़ कर अपने वालिद की खिदमत करती होंगी और दिल में अल्लाह से फरियाद कर रही होंगी कि ये अल्लाह मेरे बाबा को सही कर दे। मेरा एक ही तो सहारा है, क्या वो भी तू मुझसे छीन लेगा? लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था और दुनिया को दिखाना था कि ये लोगों, ये अहले बैत है। मैं जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें देता हूँ। इसलिए अभी 2 दिन भी न गुजरे थे कि वालिद हजरत अली ने भी बेटी ज़ैनब की आंखों के सामने दम तोड़ दिया और ये मासूम बेटी अंदर ही अंदर आंसुओं की घूंट पीकर रह गई। अब हजरत ज़ैनब के पास सिर्फ अपने भाई ही थे कि जिन्हें देखकर वो अपने दिल को दिलासा देती कि ये ज़ैनब परेशान न हो। तुम्हारे माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ, अल्लाह ने तुम्हें सच्ची मोहब्बत करने वाले भाई दिए हैं, वही तुम्हारे लिए काफ़ी है। लेकिन शायद इस मासूम बहन को नहीं पता था कि अभी जमाना एक और करवट बदलेगा और ये जालिम दुनिया इस बहन से उसके भाइयों को भी छीन लेगी। वक्त गुजरता गया, आखिर एक वो दिन भी आ गया कि जिस रात हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जहर दिया गया। उस रात हजरत ज़ैनब मुसल्ले पर बैठी हुई इबादत कर रही थी और उनके भाई हजरत हसन दिन भर के थके हुए आराम फरमा रहे थे कि तभी अचानक रात में हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आँख खुली तो बहन ज़ैनब को आवाज़ देकर बुलाया। भाई की आवाज़ सुनकर ज़ैनब जल्दी से नमाज का सलाम फेरा और दौड़ती हुई अपने भाई हजरत हसन के पास पहुंची तो हजरत हसन ने बहन ज़ैनब को अपने पास बिठाते हुए कहा कि ये मेरी बहन, आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, बहुत गौर से सुनो। ए ज़ैनब, अभी मैंने ख्वाब में देखा, मुझे हमारे नाना नजर आए थे। वो मुझसे कह रहे थे कि ए हसन, तुझे लेने में आ गया हूँ। इसे सुनकर हजरत ज़ैनब बेइख्तियार रोने लगी, लेकिन हजरत हसन ने कहा कि ए मेरी बहन, अल्लाह पर भरोसा रखो, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम ही मेरे बच्चों का ख्याल रखना। फिर हजरत हसन ने फरमाया कि ये ज़ैनब, मुझे प्यास लगी है, इसलिए जाओ और घड़े से मेरे लिए पानी ले आओ। हजरत ज़ैनब अब उठकर घर के कोने में रखे घड़े के पास गई और आंखों में आंसू भरे थे। पास पहुंचकर दुपट्टे से अपने आंसू पोंछने लगी, फिर एक प्याले में पानी निकालने लगी, लेकिन दिल पर भाई की बात का गम ऐसा तारी था कि खुद को संभाल न सकी और उसी जगह पर बैठकर बहुत देर तक रोती रही। फिर जल्दी से प्याले में पानी भरा और भाई हसन के सामने लाकर रख दिया। यही वह घड़ा था कि जिसमें दुश्मनों ने हजरत हसन को शहीद करने के लिए जहर मिलाया था और वो जहर इतना तेज था कि हजरत हसन ने जैसे ही उसे प्याले का पानी पिया तो पहले तो कुछ भी महसूस न हुआ, लेकिन थोड़ी देर के बाद अचानक खून की उल्टियाँ होने लगी और फिर देखते ही देखते हजरत हसन की तबीयत ऐसी खराब हुई कि उनका चेहरा जहर के असर से हरा पड़ गया। बेचारी ज़ैनब भाई की ऐसी हालत देख बराबर रोई जा रही थी और समझ चुकी थी कि मेरे भाई ने जो कहा था कि मुझे मेरे नाना लेने आ चुके हैं, वो बात सच होने के करीब है। भाई हसन की वफात के बाद बहन ज़ैनब ने वो मंजर देखा कि कैसे बनु उमैया वाले तलवार लेकर निकल आए थे और हजरत हसन को उनके नाना के बगल में दफन होने से रोक रहे थे। बनु उमैया वालों ने कह दिया था कि अगर हसन की कब्र हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास बनाई गई तो हम अपनी तलवारों से खून की नदियां बहा देंगे, क्योंकि जब हमारे खानदान के एक फर्ज हजरत उस्मान को इस जगह पर दफन नहीं होने दिया गया तो हम हजरत हसन को भी यहाँ दफन होने नहीं देंगे। ये मंजर देखकर हजरत अबू हुरैरा ने एक ऊंची जगह खड़े होकर कहा कि ए लोगों, तुम कैसे जालिम हो। लेकिन उस वक्त हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आकर हजरत हुसैन को समझाया और कहा कि ए हुसैन, क्या तुम्हें अपने बड़े भाई हसन की वे वसीयत याद नहीं जो उन्होंने वफात के वक्त कही थी कि अगर नाना के बगल में कब्र बनाने पर कुछ लोग मुखालफत करे तो लड़ाई झगड़ा मत करना, बल्कि मुझे मेरी अम्मी हजरत फातिमा के बगल में ले जाकर दफन कर देना। ये सुनकर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुस्सा ठंडा पड़ गया और कहने लगे कि
चलो मेरे भाई हसन की कब्र मेरी अम्मी की बगल में बनाओ। और फिर शाम होते होते हजरत हसन को जन्नतुल बकी में उनकी अम्मी हजरत फातिमा के बगल में दफन कर दिया गया। बड़े भाई हजरत हसन की वफात को अभी ज़्यादा दिन गुजरे भी नहीं थे कि जालिम यजीद ने छोटे भाई हजरत हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को भी अपना निशाना बना लिया और फिर करबला के मैदान में हजरत हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को ऐसी बेदर्दी के साथ शहीद किया कि पूरी इस्लामी तारीख में ऐसी शहादत कहीं नहीं मिलती कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस प्यारे नवासे को पहले तो कई दिनों तक प्यासा रखा गया, आंखों के सामने ही सारे भाइयों को और लड़कों को शहीद कर दिया गया। फिर आखिर में हजरत हुसैन पर भी जालिम इब्ने जिहाद ने तलवार उठा ली। सारा लश्कर एक तरफ था और हजरत हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु अकेले दूसरी तरफ तलवार लिए खड़े थे। हजरत ज़ैनब करबला के मैदान में सजदे में थी और अल्लाह से रो रो कर दुआएं कर रही थी कि या अल्लाह मेरे भाई हुसैन की मदद फरमाना। लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए लड़ते लड़ते जालिम फौजों ने हजरत इमाम हुसैन को भी शहीद कर दिया और उनका सर मुबारक तने अख्तर से जुदा करके नेजों पर लटका दिया। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस वक्त करबला के मैदान में दुश्मनों से लड़ने जा रहे थे तो अपनी तलवार को एक पत्थर पर तेज करते हुए बहन ज़ैनब को अपने पास बुलाया और कहा कि ए मेरी बहन, अगर आज लड़ते लड़ते मैं शहीद हो जाऊं तो मेरे बच्चों का ख्याल रखना और हो सके तो इन दुश्मनों से मेरे प्यासे बच्चों के लिए पानी मांग लेना। शायद इनके दिल में मेरे बच्चों पर तरस आ जाए और वो उन्हें 2 घूंट पानी पिला दे। हजरत ज़ैनब ने जब ये सुना तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। लेकिन हजरत हुसैन उस वक्त करबला के मैदान में जा चुके थे। अचानक थोड़ी देर के बाद हजरत इमाम हुसैन का घोड़ा जुलजला दौड़ता हुआ बहन ज़ैनब के पास आया। वो थोड़ा खून में लथपथ था, उसके जिस्म पर तीर लगे हुए थे, आंखों में आंसू जारी थे और वो एक खामोश जुबान में बहन ज़ैनब से कुछ कह रहा था। शायद वो घोड़ा बहन ज़ैनब से कह रहा होगा कि ये रसूल की नवासी, काश कि आप करबला के मैदान में वह मंजर देख लेती। इस जालिम यजीद की फौज ने तुम्हारे भाई हुसैन को कैसे तड़पाकर मारा है, उनके हाथ पैर काट दिए, उनका सर तन से जुदा कर दिया और फिर उनके पाकीज़ा जिस्म पर घोड़े दौड़ा दिए। हजरत ज़ैनब ने जैसे ही अपने भाई हुसैन के घोड़े जुलजुला को अकेला अपने पास दौड़ता हुआ देखा और उसके जिस्म पर लगे तीरों तलवार के निशान देखे तो समझ गई कि बाहर करबला के मैदान में जालिमों ने मेरे भाई हुसैन के साथ क्या कहर उठाया है। और फिर हजरत ज़ैनब की एक रोने की आवाज़ गूंजी जिसमें ज़मीनों आसमान को भी हिलाकर रख दिया। हजरत ज़ैनब रो रो कर अपने नाना हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पुकार रही थी और कह रही थी कि ये मेरे नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ए मेरे नाना, काश कि आप हमारे बीच होते तो आज करबला के मैदान में आकर देख लेते कि इन जालिमों ने तेरे हुसैन का क्या हाल किया है। हजरत हुसैन को शहीद करने के बाद इब्ने जिहाद ने फौजों को हुक्म दिया कि जाओ और अब औरतों के खेमों पर हमला बोलो। अचानक इब्ने जिहाद के हुक्म पर फौजों ने औरतों के खेमों पर हमला बोला और वे सिपाही एक एक करके खेमों को जलाते जा रहे थे और अंदर बैठी पाकीज़ा औरतों को बेपर्दा करके खेमों के बाहर धक्का दे रहे थे। अचानक उसी वक्त एक आवाज़ गूंजी कि ये फौज वालों, अपनी जगह पर रुक जाओ, खबरदार जो तुम एक कदम भी आगे बढ़े। क्या तुम्हें नहीं पता कि अंदर अहले बैत की औरतें बैठी है? मेरी बहनों, ये आवाज़ करबला की सैनी हजरत ज़ैनब की थी। लेकिन उस जालिम फौज ने नबी की इस नवासी का भी एहतराम न किया और अंदर घुसते चले गए। हजरत ज़ैनब नबी की वो नवासी थी कि जिनकी आवाज़ तक किसी गैर मरहम ने ना सुनी थी। लेकिन आज करबला के मैदान में यजीद की इस जालिम फौज ने नबी की नवासी को भी बेपर्दा करके मर्दों के सामने ला खड़ा कर दिया। हजरत ज़ैनब जब खेमों से बाहर निकली और हर तरफ अपने घर वालों की लाशें ही लाशें देखी और अपने भाई हुसैन का कटा हुआ सर मुबारक इब्ने जिहाद की तलवार में लटका देखा तो बेहोश होकर गिर पड़ी और जब होश आए तो फिर ऐसे अल्फाज में मर्सिया पड़ा कि जिसे सुनकर दुश्मन भी रोने लगे। हजरत ज़ैनब
रोते हुए करबला के मैदान में कहा, ए मेरे नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ए मेरे नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आ जाओ, आज करबला के मैदान में आकर देख लो कि इन लोगों ने आपके बच्चे हुसैन का सर कलम करके कैसे नेज़ों पर लटका दिया है। आपके घर की औरतों को बेपर्दा करके जंजीरों में जकड़ दिया है और उन्हें सड़कों पर घसीटा जा रहा है। ए मेरे नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, काश कि आप बाहयात होते। हज़रत ज़ैनब की इस दुख भरी फरियाद ने पत्थर दिलों का भी सीना चीर कर रख दिया। लेकिन जालिम इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर फौज ने अहले बैत की औरतों को जंजीर से झगड़ा और फिर उन्हें पैदल ही कूफा शहर लेकर गए। कूफा शहर करबला के मैदान से कोई आसपास नहीं था, बल्कि सैकड़ों किलोमीटर दूर था। ये जालिम फौजें अहले बैत की औरतों को जंजीरें पहनाकर पैदल ही कूफा शहर लेकर गए। इब्ने ज़ियाद की नज़र जैसे ही हज़रत हुसैन के लड़के हज़रत ज़ैनुल आबिदीन पे पड़ी तो हुक्म दिया कि इस लड़के की भी गर्दन काटकर नेज़े पर लटका दो। इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर सिमर आगे बढ़ा और अपनी तलवार निकालकर हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को शहीद करना चाहा। हज़रत ज़ैनब ने जैसे ही सिमर को तलवार निकालता देखा तो दौड़कर अपने भतीजे हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के ऊपर जाकर लेट गई और कहने लगी कि जालिमों, क्या अभी तक तुम्हारी प्यास नहीं बुझी है? तुम रसूल के घर वालों का कितना खून बहाओगे? सिमर ने बहुत कोशिश की, लेकिन हज़रत ज़ैनब अपने भतीजे हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल ना होने दिया और कह दिया कि ए जालिमों, अगर तुम मेरे भतीजे को कत्ल करना चाहते हो तो पहले मेरी गर्दन काटो। आखिरकार मजबूर होकर इब्ने ज़ियाद ने सिमर को रोक लिया और कहा कि इन सभी को कूफा लेकर चलो। तमाम अहले बैत को पैदल ही जंजीरों में जकड़कर कूफा ले जाया गया और फिर वहां से पैदल यजीद के महल दमिश्क ले जाकर उन्हें जालिम यजीद के सामने पेश किया गया। यजीद ने जब हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कटे हुए सर मुबारक के साथ बेहुरमती करते हुए अपनी छड़ी से उनके होठों पर मारा तो ये मंजर देख एक बहुत बूढ़े साहबी तड़प उठे और खड़े होकर कहने लगे कि ए जालिम यजीद, हुसैन के होठों से अपनी छड़ी हटा लो। मैंने इन होठों पर प्यारे नबी हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के होठों को लगता देखा है। इस सहाबी की बात सुनकर यजीद इतने गुस्से में आ गया कि कहने लगा कि ए बूढ़े दादा, शुक्र मनाओ कि तुम बूढ़े हो गए हो, वरना अभी तुम्हारी तलवार से गर्दन उड़ा देता। दमिश्क पहुंचने के बाद यजीद भी उन अहले बैत के साथ बुरा सलूक करना चाहता था, लेकिन हज़रत ज़ैनब के दिल चीर देने वाले खुतबे से पूरे दमिश्क को हिलाकर रख दिया और करीब था कि हज़रत ज़ैनब के खुतबों की वजह से यजीद के अपने लोग ही अपने दुश्मन बनकर जालिम हुकूमत का तख्ता पलट देते। इसलिए यजीद ने इस नाजुक हालात को देखते हुए तमाम अहले बैत को जल्द से जल्द दमिश्क से मदीना रवाना कर दिया और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कटा हुआ सर मुबारक बहन ज़ैनब के हाथ में रखते हुए कहा कि आप लोग सलामती के साथ अपने शहर मदीना लौट जाएं। हम उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह ताला अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।